Good morning, students. Hope that you understood the proposals of the cabinet mission and the reason for its rejection and acceptance and the reaction of the Sikhs and the scheduled caste. I have told you that we will discuss now the Attlee's announcement, so we will start now. Attlee's announcement is nothing but only 2-3 points are there that you have to know, that you will have to learn. Only one thing. जैसे Attlee was the Prime Minister of Britain, ठीक है. So he became the Prime Minister in the early of 1947, the same year in which India got the independence. The same year he became the Prime Minister. So he made the announcement that he made announcement on 28th February that soon he had fixed the date that before 38 June of 1948 Britishers would leave India. यानी कि इसने एक डेट बता दी कि इस डेट को Britishers would leave India. So it was welcomed by the Congress and Muslim League both. Congress was happy because of date was fixed within which the Britishers would leave India. Muslim League was happy because he made the announcement, क्योंकि तब तक the trial was conducted by the Britishers की how the powers will be handed over to the Indians. तो ये negotiation चल रहा था. कैबिनेट मिशन आपने देखा कि it came also just for to transfer the power into the hand of the Indians, लेकिन that was accepted by League and the Congress. तो एटली ने एक अनाउंसमेंट किया कि ठीक है, हम 30 जून 1948 से पहले ब्रिटिशर्स वुड लीव इंडिया. और उसने एक अनाउंसमेंट ये भी किया कि ईदर द पावर विल बी हैंडेड ओवर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. कहने का मतलब कि या तो एक देश बनेगा, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी पावर हैंड ओवर हो जाएगी, एंड इफ़ इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, then the government should be handed over whether as a whole to some form of the central government or in some area to the existing provincial government. या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में और कुछ पावर जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दी जाएंगी. यहाँ पर उनके कहने का क्लियर कट मतलब ये था कि ऐसे प्रोविंसेस जहाँ मुस्लिम्स ज़्यादा थे उनको एक्स्ट्रा पावर दे करके उनको एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस जो हैं उनको एक्स्ट्रा पावर दे करके सेपरेट कर भी किया जा सकता है. इसलिए सिंस दिस अनाउंसमेंट वाज मेड, दैट इज़ वाई इट वाज वेलकम बाय बोथ लीग एंड दी कांग्रेस. कांग्रेस के हैप्पी होने की वजह अलग थी, मुस्लिम लीग के हैप्पी होने की वजह अलग थी. यहाँ पर देखो, आई हैव रिटन इन द नोट्स ऑल्सो. बस इतना ही आपको लर्न करना है, समझना है कि PM Attlee fixed a firm date by which the Britishers would leave India. He made a historic announcement in the House of the Commons. The main thrust of this announcement was that the British would quit India by 38 June 1948. If the Muslim League did not join the Constituent Assembly, the government would have to consider to whom the powers of the central government should be handed over on the due date. उन्होंने कह दिया अगर मुस्लिम लीग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं करती तो वी विल थिंक कि whom we will hand over the power whether as a whole to some form of the central government or in some areas to the existing provincial government. बस इतना ही आपको पढ़ना है. इसमें अब आ जाता है माउंट बेटन प्लान. ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट प्लान है, माउंट बेटन प्लान. तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई ही केम टू इंडिया. ही केम टू इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव टू ट्रांसफर द पावर्स टू द इंडियंस. तो ही हैड 2 प्लान, 2 प्लान लेकर के आया. 2 ही प्लान उस टाइम पॉसिबल भी था. या तो प्रिजर्व द यूनिटी, इंडिया की यूनिटी प्रिजर्व की जाए एंड गिव मैक्सिमम पावर्स टू द प्रोविंसेस, या दूसरा प्लान था डिवाइड इंडिया इनटू 2 इंडिपेंडेंट स्टेट. But he tried to negotiate Muhammad Ali Jinnah. He had a continuous talk with the leaders of the Muslim League and the Congress. But finally, what the decision was made that he failed to continue to convince Jinnah and decided to divide it. ठीक है. तो Mountbatten was the last viceroy of India and he was the viceroy of India also, and he failed to convince Muslim League and he was the viceroy who declared the partition of India. अब आता है आपका इम्पोर्टेंट जो आपके क्वेश्चन पेपर के लिए है कि माउंटबेटन प्लान क्या था. तो माउंटबेटन प्लान में ये तो सिर्फ आपको रीड करना है, इसमें कुछ नथिंग इज देयर, ये कुछ नहीं है, खाली इसको रीड कर लेना कि माउंटबेटन जो मैंने अभी लिख के बताया वही लिखा हुआ है इसमें. अब आता है आपका कि माउंटबेटन प्लान क्या था. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. प्लान में उसने ये बोला डिवीजन ऑफ बंगाल एंड पंजाब. जो हम मुस्लिम लीग वाज आस्किंग फॉर द
Muslim League was asking for this part of the India as the Pakistan, इधर वाला हिस्सा एज अ वेस्ट पाकिस्तान और इधर वाला हिस्सा एज ईस्ट पाकिस्तान। तो यहाँ पर कुछ प्रोविंस तो ऐसे थे विच ऑटोमेटिकली द होल प्रोविंस विल गो इन दी पाकिस्तान, जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, इधर ये था ये सिंध का एरिया जो था, कुछ एरियाज़ तो ऐसे थे जो पूरे के पूरे इस प्रोविंस में, इस देश में जा सकते थे। लेकिन पंजाब जो था वो ऐसे था, आधा पंजाब भारत में और आधा इंडिया में। मतलब कहने का मतलब कि पंजाब एक ऐसा प्रोविंस था जो कि पूरा के पूरा पाकिस्तान में नहीं लिया जा सकता था। और यहाँ पर आसाम एक ऐसी जगह थी, अरे सॉरी बंगाल, यहाँ पर बंगाल एक ऐसी जगह थी जो पूरा के पूरा इधर नहीं जा सकता था। तो माउंटबेटन के प्रपोजल में पहले उसने ये कहा, द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब वॉज प्रपोज्ड प्रोवाइडेड दैट द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द टू प्रोविंसेस डिसाइडेड इन फेवर ऑफ पार्टीशन। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद करना है कि ही डिसाइडेड दैट बंगाल एंड पंजाब वॉज द पंजाब एंड द बंगाल वॉज पार्टीशनड। यहाँ मतलब आई होप कि आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि वाई इट इज़ रिटन पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब, क्योंकि ये आधे आधे गए हैं पाकिस्तान में, आधा भारत में। तो उसने कहा बंगाल प्रोविंस और पंजाब प्रोविंस का पार्टीशन हो गया। दूसरा आपको देखो, द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड कंटिन्यू टू वर्क बट द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम बाय इट वुड नॉट बी एप्लीकेबल टू पाकिस्तान। अब आप देखो, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो 1946 में ही बन गई थी। यानी कि कैबिनेट मिशन प्रपोजल में हमने जब देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेजॉरिटी कांग्रेस के पास थी, मुस्लिम लीग गॉट वेरी लेस सीट, तो मुस्लिम लीग सेड कि वी विल नॉट ज्वाइन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपको याद होगा, भी मैंने पढ़ाया था। तो माउंटबेटन ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी है वो अपना काम जारी रखेगी, लेकिन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम बाय इट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान के फॉर द पाकिस्तान अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी सेटअप ऑब्वियसली। उसके बाद है आपका सिंध। सिंध में उन्होंने बोला, सिंध भी एक प्रोविंस था, तो सिंध के लिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि सिंध की लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछा जाएगा कि वेयर दे वांट टू गो। यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछा जाएगा, अगर वो यहाँ के लिए ऑप्ट करते हैं तो यहाँ के लिए ऑप्ट करते हैं तो यहाँ भेज दिया जाएगा। इसीलिए देखो यहाँ पर लिखा है, ध्यान से आप पढ़ना है इसको, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सिंध वॉज टू टेक इट्स ओन डिसीजन एट अ स्पेशल मीटिंग। ये माउंटबेटन का प्लान था कि भारत को ऐसे डिवाइड किया जाए। फिर है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि अभी हमने देखा पाकिस्तान के साइड ही है। वहाँ पर उसने बोला कि अ रेफरेंडम वुड बी कंडक्टेड इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। पब्लिक वोटिंग कराई जाएगी, वोट करा करके पूछा जाएगा कि ये प्रोविंस जो है किसकी तरफ जाना चाहता है, एंड दस प्रोविंस ऑल्सो वोटेड फॉर दी पाकिस्तान। रिजल्ट यही निकला। भी तो प्रपोजल में उसने कहा था रेफरेंडम वुड बी कंडक्टेड। फिर आता है द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलहट। सिलहट डिस्ट्रिक्ट, द मुस्लिम लीग मेजॉरिटी सिलहट। सिलहट जो है ये भी बंगाल के साइड पे था, आसाम के पास एक एरिया था, यहाँ पर था सिलहट। यहाँ पर भी उसने बोला कि अ रेफरेंडम वुड बी कंडक्टेड। देखो अब मैं आपको बताऊँ, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सिंध विल डिसाइड वेयर टू गो, बंगाल एंड पंजाब वॉज पार्टीशन, रेफरेंडम वुड बी कंडक्टेड इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिलहट बोथ। ठीक है, ये माउंटबेटन का प्लान था। उसके बाद अब आता है प्रिंसली स्टेट। बोर्ड के पेपर में ऑलवेज द प्रिंसली स्टेट विल बी आस्क्ड, चाहे वो क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन हो, चाहे ये, हमेशा प्रिंसली स्टेट का क्वेश्चन ज़्यादा आता है। अब बात आती है प्रिंसली स्टेट की। तो प्रिंसली स्टेट जो हैं वो बीच में कई जगहों पर थे भारत में, जहाँ अभी भी राजाओं का शासन था। 1857 रिवोल्ट के बाद 1858 में क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन में शी प्रोक्लेम ना कि नो फर्दर एनेक्सेशन वुड टेक प्लेस, बोला था उसने। तो ये प्रिंसली स्टेट का क्या होगा, तो उन्होंने ये बोला द प्रिंसली स्टेट वुड बी फ्री टू ज्वाइन ईदर ऑफ द डोमिनियन, इफ दे वांट टू गो विद पाकिस्तान दे कैन, एंड इफ दे वांट टू गो टू दी want to remain with India they can do so. बाद में we all know that because of Sardar Vallabh Bhai Patel and the efforts made by Jawaharlal Nehru, most of all the princely states remain with India only. लेकिन प्रपोजल में क्या था, एज रिगार्ड टू द प्रिंसली स्टेट द ट्रीटी विद देम वुड कम टू एन एंड। जो ट्रीटी बिटवीन वो था ना, आपने क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन में था कि ऑल द ट्रीटी दैट वाज मेड बिटवीन द प्रिंसली स्टेट एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी वुड बी ऑनर्ड, तो वो इस ट्रीटी अब तक चल रही थी। तो उन्होंने बोला कि ऑल द ट्रीटीज़ वुड कम टू एन एंड।
they would be free to associate themselves either of the dominion or remain independent. They were free, princely states were free to join either of the dominion or can remain independent. ये 3 ऑप्शन दिए गए प्रिंसली स्टेट्स को, चाहे तो यहाँ पाकिस्तान चले जाएं, चाहे भारत में रहें, चाहे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दें अपने आप को, इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं. फिर आता है अ बाउंड्री कमीशन वुड बी मेड दैट वुड डिसाइड द बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. जितना सेंटेंस मैं बोल रही हूँ उतना ही सेंटेंस आपको याद करना है. प्रिंसली स्टेट वाला ही केवल आपको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है. बाउंड्री कमीशन वुड बी सेटअप टू डिसाइड द बाउंड्री ऑफ द 2 डोमिनियन. ऑब्वियसली जब इंडिया पाकिस्तान बनेगा तो बाउंड्री डिसाइड होगी. रिलेशंस बिटवीन द 2 न्यू डोमिनियन इट डिपेंड अपॉन इट वॉज फॉर द डोमिनियन to decide that relations would have the British Commonwealth and with each other. ये totally इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि whether they want to have what kind of relation they want to have with the British Commonwealth. ये इनके ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, फिर मतलब भारत इट विल डिपेंड अपॉन इंडिया एंड पाकिस्तान की विच टाइप ऑफ रिलेशन दे वांट टू हैव विद द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ. कॉमनवेल्थ में भी ऑल नो जहाँ जहाँ ब्रिटिश की कॉलोनीज थी उनको मिला के कॉमनवेल्थ बनाया गया था. ट्रांसफर ऑफ पावर्स बिफोर द एंड ऑफ 1947. और एक और अनाउंसमेंट उसने किया कि वी विल हैंड ओवर द पावर बिफोर द एंड ऑफ 1947. तो ये आपका हो जाएगा माउंटबेटन प्लान. अब आता है लीग ने भी एक्सेप्ट किया क्योंकि पार्टीशन हो गया, कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया क्योंकि कांग्रेस ने एक्सेप्ट क्यों किया, इसके लिए आपका क्वेश्चन आता है. अब आपको इसमें केवल ये जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है वही याद करना है. कांग्रेस ने क्यों एक्सेप्ट किया भारत का डिवीजन, इसके कई कारण थे. पहला ये है कि कम्युनल राइट्स हैड टेकन अ सीरियस टर्न एज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट एक्शन. इतने ज़्यादा कम्युनल राइट्स हो गए थे, मुस्लिम लीग कहीं से भी कोऑपरेट करने को तैयार नहीं थी. और कम्युनल राइट्स को देखते हुए कि द कांग्रेस हैड द फियर कि दिस वाज द ओनली सोल्यूशन. महात्मा गांधी ऑल्सो टोल्ड दैट वी कैन नॉट ब्लेम माउंटबेटन फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया बिकॉज वी हैव नॉट डिसाइडेड अमंग देमसेल्व्स, वी कुड नॉट प्रिजर्व. तो कम्युनल राइट्स इतने ज़्यादा हो रहे थे कि कांग्रेस एक्सेप्टेड इट एज अ सोल्यूशन ऑफ दीज कम्युनल राइट्स. दूसरा देखो कांग्रेस ने क्यों एक्सेप्ट किया. दूसरा है द लीग हैड जॉइंड द इंटरिम गवर्नमेंट टू ऑब्स्ट्रक्ट एंड नॉट टू कोऑपरेट. मैंने आपको कल बताया था कि लेटर ऑन इंटरिम गवर्नमेंट में वाइसरॉय हैज़ फॉर्म द इंटरिम गवर्नमेंट विदाउट द मुस्लिम लीग and they wanted the parity with the Congress. So Muslim League refused to join the interim government, and later on Muslim League joined the interim government, but they did not allow the Congress ministers to function independently. तो उन्होंने ये भी देख लिया था कि अगर मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई जाती है तो कैसे काम करेगी. तो उन्होंने उनका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही वर्स्ट रहा क्योंकि द लीग हैड जॉइंड द इंटरिम गवर्नमेंट टू ऑब्स्ट्रक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए उन्होंने ज्वाइन किया, नॉट टू कोऑपरेट. ये बोल्ड लेटर वाला ही सफिशिएंट है याद करने के लिए. फिर आता है द ओनली ऑल्टरनेटिव टू पार्टीशन वॉज द फेडरेशन विद द वीक सेंटर. उन्होंने कहा कि अगर इफ़ वी विल नॉट एक्सेप्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया देन वी विल हैव अ यूनाइटेड इंडिया बट विद द वीक सेंटर. क्यों वीक सेंटर बोला, क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में कभी भी एक कोऑपरेशन की भावना डेवलप हो ही नहीं पाई. तो अगर सेंटर बनता तो उसमें मुस्लिम लीग के भी मेंबर होते और वो हमेशा गवर्नमेंट के काम को ऑब्स्ट्रक्ट करते रहते. इसलिए उन्होंने कहा कि पार्टीशन का अल्टरनेटिव यही है कि यूनाइटेड इंडिया हो पर उसका सेंटर वीक होगा. और आपको मालूम है जिस देश का सेंटर वीक होता है उसका फंक्शनिंग जो है हमेशा खराबी होती है. वो देश फिर यूनाइटेड बहुत लंबे समय तक नहीं हो सकता. उसके बाद है द लीडर्स फेल्ट दैट द पार्टीशन वुड रिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट एंड द अदर अनडेमोक्रेटिक प्रोसीजर. द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस दे थॉट दैट अगर वी विल एक्सेप्ट द पार्टीशन देन वी विल गेट रिड ऑफ द सिचुएशन द सेपरेट इलेक्टोरेट एंड द अदर अनडेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स. उन्होंने कहा कि अगर पार्टीशन जब होता है तो जो सेपरेट इलेक्टोरेट वॉज देयर, मुस्लिम लीग तो तैयार नहीं होती कि सेपरेट इलेक्टोरेट अब हटा दिया जाए, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो एक अनडेमोक्रेटिक प्रोसीजर है. तो उन्होंने कहा द सोल्यूशन ऑफ द गेटिंग रिड ऑफ द अनडेमोक्रेटिक प्रोसीजर द पार्टीशन इज द सोल्यूशन. उसके बाद द लीडर्स फेल्ट दैट फर्दर डिले इन द ट्रांसफर ऑफ द पावर कुड फाइंड इंडिया इन द मिड्स ऑफ सिविल वॉर. अगर इफ स्टिल the partition would be delayed तो इंडिया कैन बी इन द मिड्स ऑफ द सिविल वॉर. इंडिया में इतनी कम्युनल राइट्स हो गए थे, इतने ज़्यादा क्योस हो गया था कि इंडिया जो है वो सिविल वॉर की तरफ चल रही थी. तो वॉट एवर इज देयर इन द बोल्ड लेटर यू विल हैव टू लर्न दैट ओनली. दीज आर दी व्हाट यू कैन से
the reasons why the Congress accepted the Mountbatten plan. अब Mountbatten plan तो एक proposal था when it went to the British House of Commons, when it is passed from the British House of Commons, when Queen Victoria gave her assent to the Mountbatten plan, it came as Indian Independence Act of 1947. समझ में आया? माउंटबेटन ने सुझाव दिया था, प्रपोजल था ये. जब इस प्रपोजल पे क्वीन की मंजूरी हो गई, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की मंजूरी हो गई, तो ये एक्ट में परिवर्तित हो गया. जैसे हमारे यहाँ होता है कोई बिल आता है, कोई प्रपोजल आता है, जब वो दोनों हाउस से पास हो जाता है, प्रेसिडेंट से साइन हो जाता है, तो वो एक्ट बन जाता है. सिमिलरली ये व्हेन इट इज़ पास्ड बाय ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स इट बिकेम एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट. अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के प्रपोजल क्या हुए? 2 न्यू डोमिनियन. उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि नाउ द इंडिया एंड पाकिस्तान वुड बी कंसिडर्ड एज 2 सेपरेट डोमिनियंस. देखो कि फ्रॉम 15th August 1947 टू बी नोन एज इंडिया एंड पाकिस्तान. पाकिस्तान वॉज टू कंप्राइज ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलत इन असम. ये जाएंगे इंडिया में, पाकिस्तान में, एंड रेस्ट पार्ट विल कम इन दी इंडिया. दूसरा, ईच डोमिनियन टू हैव अ गवर्नर जनरल. दोनों डोमिनियन के अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे. जिन्ना became the Governor General of Pakistan, and on the request of Jawaharlal Nehru, we will come this later. On the request of Jawaharlal Nehru, Mountbatten became the first Governor General of India for 1 year. Later on, C. Gopalachari was made. अभी आगे आएगा ये. Now there would be a Governor General for each dominion. The Governor General acts as a constitutional head. Governor General दोनों डोमिनियन के होंगे, लेकिन वो वैसे नहीं होंगे जैसे ब्रिटिश के टाइम पे होते थे. They will act as a constitutional head. जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है कि he has to work according to the decision of the parliament. उस तरह से गवर्नर जनरल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह काम करेंगे. There was no sphere in which he could act against the wishes of the minister. उनकी पावर को इतने यहाँ पर लिमिट कर दिया गया कि under no condition he could act against the wish of the ministers. Similarly, the provincial governors would act as on the advice of the ministers. अब आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये तो हमने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो दैट वाज एग्जिस्टिंग, इट विल वर्क एज इट विल फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वुड हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. एक तो ये पॉइंट था, वो वही रहा. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड सर्व एज द मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑल्सो. इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो आपके 385 मेंबर्स थे उसमें से मुस्लिम लीग वाले जो है वो माइनस हो गए. तो जो बचे, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट वाज नॉट द इलेक्टेड गवर्नमेंट. वो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि जो पार्लियामेंट, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तो इलेक्शन कैन नॉट बी कंडक्टेड एट दैट टाइम. पहले जो इलेक्शंस होते थे वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होते थे. तो अब क्या हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे जितने, वो सारे अच्छे अपनी अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले थे, वही जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिए गए. इसीलिए यहाँ पर ये बात लिखी है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द 2 डोमिनियन वर टू सर्व एज देयर सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑल्सो. मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड सर्व एज द मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑल्सो, and they act as a sovereign body for making the purpose of the constitution as well as the laws for the dominion. और constituent assembly ये announcement हुआ कि ये जो constituent assembly है it will act as sovereign, it will be a sovereign body, मतलब independent काम करेगी, and it will make the laws for the dominion. फिर आता है प्रिंसली स्टेट का, वही पॉइंट है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ऑल द पावर्स एंड अथॉरिटी एक्सरसाइजेबल बाय हिज मैजेस्टी इन रिलेशन टू द प्रिंसली स्टेट वर टर्मिनेटेड. ऑल द ट्रीटीज दैट वाज देयर बिटवीन द प्रिंसली स्टेट एंड द ब्रिटिश इंडिया, इट वाज टर्मिनेटेड, ख़त्म कर दी गई. द स्टेटस दस बिकेम द इंडिपेंडेंट, उनका स्टेटस इंडिपेंडेंट हो गया. हाउएवर अरेंजमेंट कंसर्निंग द कस्टम, ट्रांजिट एंड कम्युनिकेशंस वर टू कंटिन्यू until they were denounced by the states or the 2 dominion. उनको जो कम्युनिकेशन, ट्रांजिट, कस्टम्स की जो फैसिलिटीज़ मिली हुई थी वो कंटिन्यू रहेगी तब तक जब तक कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो दोनों स्टेट उस पर कोई ऑब्जेक्शन ना करें. आप नहीं समझोगे इसका मतलब. ये देखो, ये प्रिंसली स्टेट है, जो भी कम्युनिकेशन है वो तो इस तरीके से गया होगा क्योंकि वो तो भारत के अंदर ही थे था. तो जब अगर ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं तो जो ये इनको कम्युनिकेशन, कस्टम जो भारत और इनके बीच में जो था वो तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि ये स्टेट उसको डिनाउंस ना कर दे. उसी तरीके से अगर कोई यहाँ पर प्रिंसली स्टेट है
तो तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक ये वाली सरकार उसको डिनाउंस ना कर दे. नाउ द एबॉलिशन ऑफ द पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट को एबॉलिश कर दिया गया. Division of the Indian Army and the sharing of the assets. The provision was made for the division of Indian Army and sharing of the assets. जितनी भी Indian Army थी, Air Force था, जितने भी assets थे, it was divided between India and the Pakistan. Safeguard the interest of the existing officer. अब मान लो कोई Indian Army में यहाँ पर कोई ऑफिसर था पहले यूनाइटेड इंडिया में, अगर वो यहाँ चला गया तो उसके इंटरेस्ट को फुलफिल किया जाएगा, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा. Provision was also made for safeguarding the interest of the existing officer appointed by the Secretary of State who would not make any such appointment in future. उसी तरीके से British officers that was appointed by the Secretary of State, their interest would also get fulfilled. अब बस यहाँ तक आपका हो गया, सारा चैप्टर ख़त्म हो गया. मोहम्मद अली जिन्ना बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान. ये बात जो मैं आपको बता रही थी यहाँ पे केवल ये है. सी राजा गोपालाचारी बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. पहले माउंट बैटन एंड आफ्टर 1 ईयर सी राजा गोपालाचारी. तो आप ऐसे अगर सी राजा गोपालाचारी वॉज द फर्स्ट, देखो यहाँ लिखा है सी राजा गोपालाचारी वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. बाद में फिर प्रेसिडेंटशिप यहाँ शुरू हो गई. ये नथिंग इज देयर, केवल आप इसको एक बार रीड कर लो. ये सारा आप पढ़ चुके हो कि वाई द ब्रिटिशर्स दे विल क्विट इंडिया. इंटेंस नेशनलिज्म की वजह से, वीक पोजीशन ऑफ इंग्लैंड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंटरनेशनल प्रेशर. ये आप पढ़ लोगे. ये ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दिस थिंग. ठीक है. तो फ्रॉम माई साइड दिस चैप्टर इज ओवर एंड नाउ व्हाट यू विल हैव टू डू, आई थिंक सम क्वेश्चन ऑफ कैबिनेट मिशन यू हैव डन. तो वॉट एवर इज देयर इन द स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 स्ट्रक्चर्ड में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप अपनी कॉपी में करोगे. और यहाँ पर जो क्वेश्चंस जैसे मैं हमेशा क्लास में करवाती हूँ कि इन वन वर्ड तो आप यहीं पे लिख दोगे. अगर कोई बड़ा है क्वेश्चन तो वही क्वेश्चन केवल आप कॉपी में करोगे. एंड द क्वेश्चन शुड नॉट बी रिपीटेड. इफ़ द क्वेश्चन इज हियर ऑल्सो यू कैन लीव दिस क्वेश्चंस. ठीक है. मेन अगर आप नहीं तो मेन आपका ये क्वेश्चन जो इस चैप्टर से क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के प्रपोजल क्या थे, वाई वॉज इट एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड बाई द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, रिएक्शन ऑफ सिख, proposal of the Mountbatten plan, why cabinet mission rejected the demand of Pakistan, why Congress accepted Mountbatten plan, what was the proposal of the Indian Independence Act. These things are important in this chapter. So whatever you will do, you must do it religiously. This chapter again, it is very important for your board point of view. So I hope that you could understood all these things. In case of doubt, you can call me. And now I am going to call all the students one by one to ask how much they have learned. Learning पे you must focus at least 2 hours every day in the morning. You must learn, beta. Okay, thank you.